اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی پہلے سماعت فرمائے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ علامہ جوہری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حمد ضم کی نقیض ہے، اور علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حمد کا معنی شکر، رضا، جزا اور حق کو ادا کرنا ہے۔ علامہ میر سید شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حمد کسی خوبی کی بطور تعظیم ثنا کرنا، خواہ وہ کسی نعمت کی وجہ سے ہو یا بغیر نعمت ہو، اسے حمد کہتے ہیں۔ اور پھر حمد کی اقسام ہیں، ایک حمد قولی ہوتی ہے، ایک حمد فعلی ہوتی ہے، ایک حمد حالی ہوتی ہے، اور ایک حمد عرفی ہوتی ہے۔ حمد قولی اس کو کہتے ہیں کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی زبانوں کے ذریعے خود اپنی تعریف فرمائی۔ حمد فعلی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بدن سے نیک اعمال کرنا، یہ حمد فعلی ہے۔ روح اور قلب کے اعتبار سے ثنا کرنا، اسے حمد حالی کہتے ہیں۔ اور منعم کے انعام کی وجہ سے کوئی ایسا فعل کرنا جس سے اس کی تعظیم ظاہر ہو، اس کو حمد عرفی کہا جاتا ہے۔ گویا حمد کی یہ چار اقسام ہیں: حمد قولی، حمد فعلی، حمد حالی اور حمد عرفی۔ ان تعریفات کے بعد اب ہم حمد کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کریں گے تاکہ حمد کی کھل کے وضاحت ہمارے سامنے آ جائے، اس کا پڑھنا کتنا اجر و ثواب ہے اور اس پہ عمل کرنا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کام کی ابتدا الحمد سے نہیں کی جاتی وہ ناتمام رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کام کی ابتدا الحمد سے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی کوئی بھی اچھا کام ہو اس کی ابتدا الحمد سے کی جائے گی تو وہ کام آپ کا باعث برکت بنے گا، وہ کام مکمل ہوگا۔ جس نیت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ آپ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ کام آپ کا اسی کرم و فضل کے اعتبار سے پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اس کو جامع ترمذی نے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کو اٹھا لیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں مولا، ہم نے اٹھا لیا ہے۔ پھر اللہ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو اٹھا لیا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں مولا، ہم نے اٹھا لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ، جب تم نے میرے بندے کے بچے کو اٹھایا تو اس کی زبان پہ پہلا کلمہ کیا آیا تھا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا، اور ساتھ میں وہ تیری حمد کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے مولا اگر تو ایسے راضی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ قول فرشتوں کا سن کے فرماتا ہے، فرشتوں جاؤ جنت میں میرے بندے کے لیے ایک عالی شان گھر تیار کرو، اس گھر کا نام جو ہے وہ بیت الحمد رکھا جائے گا، اور یہ میری حمد کرنے والا جو بندہ ہے میں یہ مکان اس کو دوں گا، یہ گھر میں اس کو دوں گا۔ اس کے بعد حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کے بعد 4 کلام افضل ہیں، قرآن کے بعد 4 کلام افضل ہیں، اور وہ بھی قرآن سے ہی ہیں، تم ان میں سے جس کے ساتھ بھی ابتدا کرو گے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک فرمایا سبحان اللہ، دوسرا فرمایا الحمدللہ، تیسرا فرمایا لا الہ الا اللہ،
चौथा हजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, यानी काम कोई भी नेक काम करना चाहो तो इन 4 कलिमात में से, इन 4 कलामों में से किसी कलाम के साथ अपने काम की इब्तिदा कर लेना। अल्लाह ताला इसमें बरकत नाज़िल फरमाएगा, इसमें कोई हरज नहीं है। या सुबहान अल्लाह के साथ, या अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, या अल्लाहु अकबर के साथ, या ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके साथ अपने काम की इब्तिदा किया करें। और हजरत अबू मालिक अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पाकीज़गी निस्फ़े ईमान है, पाकीज़गी निस्फ़े ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमान और जमीन के दरमियान को भर देते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इस हदीस पाक में फरमाना ये चाह रहे हैं कि अल्हम्द या इसके अजर को अगर मुजस्सम किया जाए तो उससे मीज़ान भर जाएगा। सुबहान अल्लाह से मुराद अल्लाह ताला की तंज़ीह है और अल्हम्दुलिल्लाह से मुराद अल्लाह ताला की सना है। फरमाया ये 2 कलिमात ऐसे हैं कि इनके साथ ज़मीन और आसमान के दरमियान जो भी है हर चीज़ अल्लाह के नक्स से पाक होने का जब बंदा दावा करता है तो अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को इन कलिमात की बरकत से भर देता है। उसके लिए इतना यानी अजर सवाब मिलता है। अमर बिन शुऐब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे दादा जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह 100 मरतबा और 100 मरतबा शाम को सुबहान अल्लाह कहता है तो उसे अल्लाह ताला 100 हज का सवाब अता फरमाता है। और जो 100 मरतबा सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहता है, अल्लाह ताला उसको जिहाद फी सबीलिल्लाह में 100 घोड़े मुहैया करने का सवाब अता फरमाता है। हजरत असवद फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को हम्द से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं है, इसीलिए उसने अपनी हम्द की है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ। यानी अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा जो बंदे का कलाम है वो अल्लाह ताला की हम्द के ऊपर जितने भी अल्फाज लाए जाएं वो हम्द वाले अल्फाज अल्लाह ताला को ज्यादा पसंदीदा अल्फाज हैं। बंदे का कलाम अल्लाह की बारगाह में वही पसंदीदा कलाम ठहरता है जिसमें बंदा अपने रब की हम्दो सना करता है। और इसके बाद एक और मसला है, क्या अल्लाह ताला की हम्दो सना तो हम करते हैं, अल्लाह की खूबियां बयान तो करते हैं, अल्लाह की तारीफात तो करते हैं, आया अपनी तारीफ करना भी हमारे लिए जायज है, अपनी हम्द करना भी हमारे लिए जायज है या जायज नहीं है? तो उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि बंदे का अपने आप को अयूब से मुनज़्ज़ह समझना और मुहासिन को अपने लिए बयान करना, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह की बारगाह में नापसंदीदा फेल है। बंदा अपने ऐब छुपा के अपनी खूबियां जाहिर करे, लोगों को बताता फिरे मैं ये भी करता हूं मैं वो भी करता हूं, तो ये तरीका नापसंदीदा तरीका करार दिया गया है और मकरूह तरीन तरीका इसको करार दिया गया है। अल्लाह की बारगाह में भी ये नापसंदीदा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी ये तरीका जो है ना ये नापसंदीदा तरीका है। और इससे बढ़कर एक बात मैं अर्ज करूं कि ये तरीका, ये जो लफ्ज है अपने मुहासिन अपने लिए इस्तेमाल करना, बयान करना और अपने आप को अयूब से मुनज़्ज़ह समझना, बरी समझना, तो ये तरीका किन लोगों का है? ये तो यहूद का तरीका है। यहूद ये कहते थे ना, नहनु अब्नाउल्लाहि व हिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे भी हैं, हम तो नौज़बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो अल्लाह करीम ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला ने उनके रद में फरमाया कि तुम अपने आप को गुनाहों से पाक समझते हो, तुम अपने आप को अल्लाह का महबूब समझते हो। फरमाया नहीं, अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने उनको नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी का दावा करते हैं।
अलम तरा इलल्लज़ीन युज़क्कून अनफुसहुम, जो अपनी पाकीज़गी का दावा करते हैं, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, पाकीज़ा अपने कहने से बंदा नहीं होता, पाकीज़ा तो अल्लाह करने वाला है, जिसे वो चाहता है वो पाकीज़ा बना देता है। ऐसे ही कुरान मजीद की आयात में इन चीजों से इंसान को मना किया गया, जैसे फला तुज़क्कू अनफुसहुम हुवा अअलमु बिमनित्तक़ा, अल्लाह ताला ने सूरह नजम में इरशाद फरमाया। तो ऐसे कई अहादीस मुबारका भी ऐसी है, जैसे एक ये फरमान मैंने आपके सामने रखा कि ये क्या करते थे, अपने आप को वो बड़ा समझते थे, नेक समझते थे, बड़ा समझते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके इस ऐब को भी जिक्र फरमा दिया। और दूसरी बात यह है कि अगर बंदे ने अपने महासिन बयान करने हैं, अपनी तारीफ करनी है, तो कब कर सकता है? गर्ज सहीह की वजह से वो कर सकता है। गर्ज सही अगर हो तो गर्ज सहीह की वजह से बंदा अपने महासिन बयान कर सकता है। इसके अलावा इस्लाम ने हमें इजाजत नहीं दी, बल्कि मकरूह और नापसंदीदा फेल इसको करार दिया गया कि कोई अपनी तारीफ अपनी जुबान से झाड़ता फिरे। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के प्यारे सहाबी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बागियों के सामने आए ना, तो उस वक्त आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के याद दिलाता हूँ, मैं तो वो हूँ जो नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के साथ था, और सरकार जबले ओहद पे तशरीफ ले गए, तो वहां आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने एड़ी मुबारक लगा के उसको फरमाया, रुक जा, तुझे नहीं पता तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं, तो मुझे तो मेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने शहीद करार दिया था ना। और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के ये बात भी याद कर दिलाता हूं कि गज़वा तबूक, ये गज़वा उस वक्त रूनुमा हुआ जब मुसलमान एक तंगी के दौर से गुजर रहे थे, एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे थे, किसी के पास खाने के लिए कोई सामान लेने के पैसे नहीं थे। ऐसे वक्त में ये गज़वा जो है ना वो रूनुमा हुआ। करीम नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया कि कोई है जो इस लश्कर को ज़ादे राह मुहैया करे, इस लश्कर को ज़्यादा राह मुहैया करे। तो फरमाते हैं कि मैं ही था जिसने उस वक्त भी मुसलमानों को, मुजाहिदीन को सामान मुहैया करके दिया, ज़्यादा राह उनके लिए जो है ना वो पेश किया, वो मैं ही था। और मैं तुम्हें कसम दिला के ये बात भी याद दिलाता हूं कि मैं वही उस्मान गनी हूं कि मुसलमान कुएं से पानी अपने पैसों के एवज खरीदा करते थे, तो मैंने उन मुसलमानों के लिए उस कुएं को अपने पैसों से खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, ऐलान कर दिया कि पूरा मदीना इसी कुएं से पानी भर के सुबह भी ले जा सकता है, शाम को भी ले जा सकता है, और फी सबीलिल्लाह ये सारा कुछ मैंने किया। तो ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो आप अपने महासिन बयान कर रहे हैं, ये महासिन किस बिना पे बयान हुए हैं? ये महासिन इसलिए उन्होंने बयान किए हैं ताकि लोगों को इल्म हो जाए। इसमें गर्ज सही थी, आप लोगों को बतलाना चाहते थे ना कि बागियों, तुम जिसके खून को आज गिराना चाहते हो वो उस्मान कितनी शान वाला है, आप उनको ये गर्ज सही की बदौलत आप उनके सामने अपने महासिन रख रहे थे। तो गर्ज सही की वजह से अपने महासिन बयान करना, इसमें कोई ऐब नहीं है, ये मकरूह नहीं है, ना पसंदीदा फेल नहीं है। अगर ऐसी बात ना हो तो वैसे ही बंदा, जैसे आजकल लोगों की आदत होती है, जहां बैठता है वहां अपनी खूबियां बयान करना शुरू हो जाता है। अगर ऐसी कोई किसी की आदत हो तो उसको इज्तिनाब करना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करनी चाहिए। हम्द के लायक वही जात है जिस जात ने हम सब को तख्लीक किया, जिस जात ने जमीन और आसमान को पैदा किया है। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए।